تو حزب البحر کے جو پہلے 4 الفاظ ہیں نا، یا اللہ یا علیم، یا اللہ یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، اس کو پڑھتے رہیں۔ کچھ خاص ہدایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس چلے کے لیے حزب البحر کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، خوش قسمت بھی ہیں آپ، سعادت مند بھی ہیں۔ کروڑوں میں سے آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور آپ خود بہت خوش قسمت ہیں اور بہت سعادت مند ہیں کہ آپ کا اتنا انتخاب۔ دیکھو، قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کریم شہنشاہ کی عنایت سے ہوتا ہے، اور بلاوا آتا ہے تو بندہ آتا ہے۔ آپ کو بلاوا آیا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئے ہیں تو بہاریں پا کے، جھولیاں بھر کے، سعادتیں لے کے جانا ہے، اور اس کریم کے خزانوں سے عنایات لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور لے کر وہ جائے گا جو پابندی کرے گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو میرے خیال میں آپ خود سوچیں، دین میں سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ میں سفر کر رہا تھا لاہور سے اسلام آباد سے لاہور، تو مغرب کا وقت جا رہا تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بس روک دیں، مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے راستے میں روک دیا کہیں، کہہ رہے یہاں پڑھ لو۔ مجھے وضو تھا، ایک اور صوب کو تھا، مختصر فرض پڑھ کے جب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھ سے بہت ناراض ہوئے اور بہت سخت لہجہ، بہت سخت رویہ، اخلاق سے بھی گرا ہوا اختیار کیا کہ بس کیوں رکائی، ہم سب لیٹ ہو گئے۔ ان کی بات سننے کے بعد میں نے ان سے تعارف ہوا، تو کہتے میں ڈاکٹر ہوں۔ اچھی بات ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ڈرپ تو لگاتے ہوں گے؟ ہاں میں نے لگاتا ہوں۔ میں نے کہا آئندہ کے لیے آپ ڈرپ جو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، ایک ایک قطرہ اندر جاتا ہے، گلاس میں کاٹ کے کٹورے میں ان کو دے دیا کریں، ڈرپ کی بوتل پی لیا کریں۔ غصے میں آ گئے کہ یہ کہاں کی ترتیب ہے؟ میں نے کہا انگریز کی ترتیب تو آپ کو پسند ہے، اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب پہ آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے۔ جس کو ڈرپ کہتے ہیں اس کی بوتل ہوتی ہے نا، تھیلی ہوتی ہے پانی کی، ایملشن کی ہوتی ہے نا، تو اس کو قطرہ قطرہ لگاتے ہیں، قطرہ 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 جاتا ہے، تو اس کو کینچی سے کاٹیں، چھری سے کاٹیں، اس کا پانی اٹھا کے کٹورے گلاس میں ڈالیں، پی لیں۔ اندر تو جانا ہے تو اس طرح اندر بھیجیں۔ کہتے ہیں نہیں، قطرہ قطرہ جائے گا۔ اگر مدینے والی کی کوئی ترتیب ہو، روحانیت کی کوئی ترتیب ہو، تو کہتے ہیں تو بہت سختی ہے۔ سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ سختی نہیں، پابندی ہے، اور وہ آپ کے لیے، میرے آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری راحت کے لیے۔ تو حزب البحر کا چلہ اگر جتنا پابندی سے کریں گے، اگر کوئی پابندی سے نہیں کر سکتا، اگر کوئی پابندی سے نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ برکتیں اور بہاریں ہیں، اس کے لیے بھی رحمتیں ہیں، اور وہ بھی خالی نہیں جائے گا، وہ بھی ہرا بھرا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہاں سے خیریں لے کر جائے گا، خالی نہیں جائے گا، اسے بھی ملے گا، وہ بھی پائے گا۔ جو بالفرض کسی ناپاکی کی وجہ سے چلہ نہیں کر سکتا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور وہ یہاں کی جو حزب البحر کے چلے کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو وہ نہیں کر سکتا، تو بھی پریشانی کی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، وہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے لے کر جائے گا، یہاں سے پا کے جائے گا۔ لیکن پابندی بہت ضروری ہے، پابندی بہت ضروری ہے۔ میں نے جیسے آج صبح کی نشست میں محفل میں عرض کیا کہ اب تو پابندیاں ختم ہو گئی ہیں،
पाबंदियां तो पहले होती थी, अब तो पाबंदियां ही खत्म हो गई और पाबंदियों का निजाम ही खत्म हो गया। पाबंदियां तो थी ही पहले। तो इसकी पाबंदियों पे नजर रखनी है। जितना कोई शख्स पाबंदी पे तवज्जो करेगा, अगर पाबंदी नहीं हो सकती तो अपने जिस्म को जबरदस्ती चिल्ले में दाखिल ना करना, कहीं अमल उल्टा ना पड़ जाए। और तस्बीह खाने से भी ना जाना, बल्कि क्या करें, ये जो तस्बीह खाने में रहने वाले चिल्ला नहीं कर सकते, तो हिजबुल बाहर के जो पहले 4 अल्फाज है ना, या अल्लाह या अलीमो, या अल्लाह या अलीयो, या अजीमो, या हलीमो, या अलीमो, इसको पढ़ते रहें और बहुत ज्यादा पढ़ें। जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो चिल्ले की पाबंदी नहीं कर सकते, बंदा पहले शौक शौक में चिल्ले की पाबंदी कहते मैं करूंगा, शौक शौक में, जब पहले दिन तेदाद उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर दिल छोड़ बैठता है। अब कड़े से निकलना, वो जो हिसार और कड़ा है उससे निकलना, तोड़ के अधूरा छोड़ के वो ना करना, अमल उल्टा पड़ जाता है। मक्का मुकरमा की इबादत 1 लाख की है, पर गुनाह भी तो 1 लाख के बराबर है। क्या ख्याल है? मक्का मुकरमा की इबादत कितने है? एक नेकी 1 लाख के बराबर है। तो पर खता का जुर्म और उसका अजाब वो भी तो उसी के बराबर है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इसकी पाबंदियों पे नजर हो, जितना जो पाबंदी से, जितना जो जिम्मेदारी से करेगा। अच्छा, ये सारी पाबंदियां बताने का मकसद ना आपको डराना है ना भगाना है। आप हजरात झोलियां भर बहारें पा, बरकतें पा के जाएं, मकसूद यही है। जो तालिब इल्म पाबंदी से तालीम हासिल करता है, वही मुल्क कौम का नाम, मां बाप का नाम रोशन करता है। जो मुलाजमत करने वाला पाबंदी से वक्त की पाबंदी करता है, वही तरक्कियां पाता है। जिंदगी में पाबंदियों का बहुत दखल है और जिंदगी में पाबंदियों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। हर शोबे में, हर शोबे में, हर शोबे में। गाड़ी का एसी चलाया तो पाबंदी से सारे शीशे भी बंद किए। कोई छोटी चीज हो, अल्लाह वालो, मेरी आपसे दरखास्त है कि इसकी पाबंदी पे नजर रखेंगे। और जो हजरात आए हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी खाली नहीं जाएंगे, वो भी इंशाअल्लाह इसकी बरकत लेकर जाएंगे। वो ऊपर के जो 5 अल्लाह के अस्मा हैं, वो 5 अस्मा मुकर्रर करें, नफली एतकाफ की नियत से बैठेंगे। वो भी नापाकी की कैफियत मजबूरी और है, जो इसकी पाबंदियां नहीं कर सकते, नफली एतकाफ की नियत से बैठेंगे। अल्लाह का इमाम 5, ये जो हिजबुल बाहर के पहले पहले हैं, या अल्लाह हो, या अली हो, या अजीम हो, या हलीम हो, या अलीम हो, इसको पढ़ेंगे। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके कुल चिल्ले की तादाद 365 है। पहले दिन 120 दफा पढ़ना, मगरिब से इशा, फजर से इशा, मगरिब से नहीं, फजर से इशा। दूसरे दिन 120 और तीसरे दिन 125। हाँ, फजर से मगरिब, भूल गया, फजर से, अब फिर दोहराएं, मेरी गलती मुझे बताएं कि मेरी गलती है। फजर से मगरिब और तीसरे दिन 125 बार। अपनी मर्जी से तादाद मुकर्रर नहीं कर सकते कि मुझे अजबर याद है मैं पहले दिन ही 365 दफा पढ़ लूं। नहीं, पहले दिन 120, दूसरे दिन 120 और तीसरे दिन 125। और उसके अलावा अर्ज किया था कि आपने अगर तादाद पूरी कर ली है, फिर आप इसकी तादाद जो है वो मुस्तकिल इसी को पढ़ते रहें। अगर पूरी कर ली है तो इसी को पढ़ते रहें, इसी को पढ़ते रहें।
اور मुस्तकिल इसको पढ़ते रहें। अगर पूरी कर लिया तो इस और कोई मामूलात ना करें। फर्ज नमाज और वाजिबात, उसमें वाजिबात नहीं है क्योंकि वाजिब हमारा सिर्फ इत्र हैं, सुन्नत मुअक्कदा हैं, फजर की सुन्नतें हैं, जोहर की सुन्नतें हैं। तो इन सुन्नतों का एहतमाम करेंगे और फराइज का एहतमाम करेंगे। नवाफिल वज़ाइफ छोड़ देंगे कि ये अमल खुद नफिल है, ये अमल खुद एक बहुत बड़ी नफिल है। इस किताब के आखिर में जो किताब आपको ये सारा सामान सुबह मिल जाएगा इंशाल्लाह। चार्ट दिया गया है, सुर्ख कलम दिया गया है, जितनी तादाद पढ़ेंगे कलम से निशान लगाएंगे, आपको गिनने में मुश्किल नहीं होगी, आपको गिनने में परेशानी नहीं होगी। और 3 दिन का रोजा है, फजर के फौरन बाद रोजा है और फजर के बाद पढ़ना शुरू करना है। इस दौरान आप हजरात ने सादा खाना, जो आपको लंगर मिलेगा, सादा खाना, बिल्कुल सादा खाना, वो इंशाल्लाह जरूर, दाल सादा खाना, जिस्म को इतनी जरूरत कि जो जिस्म की जरूरत हो। गुस्सा, तैश, जलाल, मार कुटाई या इस किस्म की चीजें बहुत नुकसानदेह हैं, उस बंदे का चिल्ला टूट जाएगा। इसमें सारा दरगुजर है, सारा दरगुजर है और सारी माफी है। बोलें सारी क्या है? सारी सारी। इसमें जरा एहतियात हो, बहुत ज्यादा एहतियात हो, बहुत ज्यादा। मजबूरन मजबूरन नापाकी है तो नहा सकते हैं, वरना बावजू रहें और जाएं तो अपने ही जूते इस्तेमाल करें, गलती ना करें किसी और के जूते की। और फौरन अपनी जरूरत, हाजत, वजू टूट गया है या हाजत है तो वजू और संजा सलवटों में कर लें, मुख्तसर 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 करें। जमान और मकान की कैद जरूरी है, जो जगह आपको दी है वहां बैठें। मजबूरी है, मजमा बढ़ गया है, कोई जगह बदल सकती है तो कोई हर्ज नहीं, मजबूरी है। सुन लें, खवातीन से खास तौर पे अर्ज कर रहा हूं, उम्मीद है कि मस्तूरात मेरी बात सुन रही होंगी शोर शराबे के बगैर। मजबूरी है, जगह बदल सकती है तो मजबूरी है, वरना अपनी जगह पे और एक ही जगह पे बैठे, एक ही जगह पे बैठे। और शामिल हों तो पूरे चिल्ले में शामिल हों, अधूरा चिल्ला छोड़ के जाना, इसकी बहुत ज्यादा नुकसानात हैं, बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। और दौरान चिल्ला मोबाइल का इस्तेमाल, बहुत नुकसानात हैं। खिड़कियों के बाहर झांकना, बातें करना, आपस में ताल्लुकात बनाना, एक दूसरे से नंबर पते लेना देना, ये और दोस्तियां करना, बिल्कुल अजनबी हो के ये चिल्ला करना है। अब इस बात को आप सब दोहराएं, अजनबी हो के। क्या हो के? अजनबी हो के। एक अजनबी हो के, दूसरा एहतराम और इकराम, बर्दाश्त, बर्दाश्त। वो कब चाहेगा शैतान कि आप हजरात कुछ लेकर जाएं, झोलियां भर के जाएं, मुरादें पा के जाएं और हिज़्बुल बाहर के आमिल बन के जाएंगे? वो कब चाहेगा? वो कब चाहेगा? वो कहेगा छोड़ इसको अधूरा, और गुस्सा और ऐसी चीजों में मशगूल कर देगा जिसका नुकसान बहुत ज्यादा, जिसका नुकसान बहुत ज्यादा। नमाज पंजगाना जमात के साथ एहतमाम करें, खवातीन अपनी इलाहदा पढ़ेंगी। नमाज पंजगाना, और जो चीजें आपको दी जाएंगी वो साथ रखें, और जो किताब दी जाएगी हिज़्बुल बाहर की, उसमें हर चीज की हिदायत मौजूद है। ऐसा ना हो कि पढ़े ना और फिर खिदमत वालों से पूछते रहें। जितना खिदमत वालों से बार बार पूछेंगे, आप चिल्ला टूटेगा आपका, क्योंकि इसमें बोलना तो है नहीं, मजबूरी में बोलना है ना, बोलना तो है नहीं। हर चीज किताब में लिखी हुई है, कैसे बैठना है
और जो चीजें आपको मिलेंगी उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हर चीज इसमें लिखी हुई है, हर चीज लिखी हुई है। और सिर्फ वो हजरात इस चिल्ले में बैठे जो चिल्ला कर सकते हैं, और अगर चिल्ला ना किया, बैठ गए, तो खुदा ना खास्ता उसका असर उल्टा पड़ जाएगा। और जो हजरात नहीं बैठ सकते वो तस्बीह खाने में, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के 5 नाम मुसलसल पढ़ें, एतकाफ की नीयत से पढ़ें, पाबंदी की नीयत से पढ़ें, और इंशाअल्लाह वो भी सारी बहारें, बरकतें, खुशियां, खुशहालियां, राहतें, रहमतें पाके जाएंगे इंशाअल्लाह। वो भी मुस्तकिल मुजाजी से, तवज्जो से अल्लाह के पहले 5 नाम पढ़ेंगे, पहले 5 नाम पढ़ेंगे। क्यों? अगर आपने पाबंदी ना की तो उसके नुकसानात भी हैं। देखें, हर दवा शिफा वाली, उस पे लिखा होता है कि ये दवा इन इन बीमारियों के लिए है। अगर आपने इसी दवा को उनकी हिदायत के मुताबिक ना खाया, वही दवा जहर बन जाती है, वो दवा बीमारी बन जाती है, और उस दवा की सेहत याबी खत्म हो जाती है। क्या ये ठीक है? उसका असर फिर औलाद पे पड़ता है, बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें, नाकामियां, मसाइल, परेशानियों पे पड़ता है। तो आप सूरत कुरैश का चिल्ला भी कर सकते हैं, और हिजबुल बहर के अल्लाह के 5 नाम, उसका चिल्ला भी कर सकते, उसका चिल्ला भी कर ले। ठीक है, मेरी बात पे तवज्जो हो रही है? उसका चिल्ला भी करें। यानी किसका? सूरत कुरैश का। आप हिजबुल बहर में नहीं बैठ सकते तो सूरत कुरैश का। अच्छा, इसमें सदका, हदिया, इस अमल का आपकी किताब में दिया हुआ है। घर जाके क्या करना है, कैसे करना है, किताब में दिया गया है। जो चीजें आपको मिलेंगी वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, किताब में उसकी वजाहत, उसकी हिदायत दी गई हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो दिया गया है, जैसे हिदायत हैं वैसे आपने करना है। अब एक अर्ज है आपकी खिदमत में कि हमने जो जितना इंतजाम किया था वो सारा इंतजाम हमारा टूट गया। मजमा इतना ज्यादा आया, इतना ज्यादा, हजारों की तादाद में। जो हजरात चिल्ले में बैठेंगे उनको अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाएगी तो अल्लाह वालों, अमल तो मैं करवा रहा हूं, इतने अल्फाज काफी हैं। अल्लाह ने आमिल, किसी फकीर, आमिल तो ना कहूं, किसी फकीर के जेरे निगरानी आए बैठे हैं, तो फकीर अगर कोई जहां चीज बाद में दे देगा वो अमल मैं बाद में भी करवा लूंगा, लेकिन मर्द हजरात को भी वो अमल देना है, पहले मैं खवातीन में पूरा करूंगा। आपने अपने अमल में बैठ जाना है। मुसल्ला मिले ना मिले, धागा मिले ना मिले, छुरी मिले ना मिले, कटोरा मिले ना मिले, मजीद कटोरे, इनकी प्रिंटिंग बहुत मुश्किल है। नक्श अपना दिया है हमने, जो नक्श रिसाले में है फकीर के नाम के साथ, वही का वही नक्श है, और पूरी हिजबुल बहर लिखवाई, इसकी लेजर प्रिंटिंग, इसके बहुत मसाइल हैं, और आखिरी दर्जे का खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरी तरतीब बना ली है। खवातीन भी वही हैं, मैं बार बार खवातीन से कह रहा हूं, अगर खवातीन चिल्ला ना कर सके तो कतई तौर पे सामान ना लें। क्या होगा? वो अमल में बैठ जाएं सूरत कुरैश के या हिजबुल बहर के पहले 5 अल्फाज पे। जब वो खवातीन वापस जाएंगी, वो मर्द वापस जाएंगे, तो उनको हर किसी को इंशाल्लाह इसका कटोरा मिलेगा, ठीक, और नक्श भी मिलेगा, हाथ का लिखा हुआ, फोटो कॉपी नहीं। देखें, पेन हर जगह मिल सकता है, एहराम की चादर हर जगह, स्याही मिल सकती है, कलम मिल सकता है, कागज मिल सकता है, नीला कपड़ा मिल सकता है। मुझे यह बताओ, यह कटोरा कहीं से मिल सकता है? ये मैंने खुद बनवाया है। हिजबुल बहर का खास जो नक्श रिसाले में है वही का वही नक्श है। ये तो बाजार में तो बना हुआ मिलता ही नहीं है, या पहले से बना हुआ तैयार था।
ये और नक्श हाथ का लिखा हुआ, हाथ का लिखा हुआ नक्श आप सबको मिलेगा। किनको? आखिरी दिन मिलेगा। किनको? जो हिजबुल बाहर के चिल्ले में हैं। हाँ, सिर्फ खवातीन से अर्ज है, जो खवातीन मस्तूरात मौजूद हैं उनके नाम लिख ले। होगा ये कि जब कटोरा मिलने का वक्त आएगा, सारा लाहौर आ जाएगा, कटोरा ले जाएगा और हकदार असल महरूम रह जाएंगे। इसी तरह मर्द हजरात भी जो चिल्ले में मौजूद होंगे वो भी अपना नाम लिखवा दें। अपना नाम, वल्दियत लाजिम लिखवाएं, नाम और वल्दियत पूरा रिकॉर्ड हमारे जिम्मेदार हजरात। उससे ये होगा कि जो 3 दिन चिल्ला करेगा, चाहे वो पूरे कवायद के साथ चिल्ला करे या सिर्फ या अल्लाह या अली या अजीम पढ़े, उसको इंशाल्लाह जाते हुए 2 चीजें लाजिम मिलेंगी। कौन सी? एक हिजबी कटोरा, हिजबुल बाहर का कटोरा, प्याला मिलेगा, और एक हाथ का लिखा हुआ नक्श मिलेगा। ये बहुत कीमती हैं। इस सारे चिल्ले की ये 2 कीमती चीजें हैं। इस सारे चिल्ले की 2, और तीसरी कीमती चीज आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत, आपकी कुर्बानी और आपकी पाबंदी। पहली कीमती चीज ये है, मेहनत, मुशक्कत, कुर्बानी और पाबंदी। ये कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। कभी भी ये बात जहन में ना लाएं, हम आए थे तो हमें कटोरा प्याला नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा जो आए हैं। नक्श सबको मिलेगा जो आए हैं। और उसके अलावा जो मर्दों में चीजों की कमी है वो इंशाल्लाह सारी कल पूरी कर दी जाएगी इंशाल्लाह। पहले मस्तूरात में हम सामान देंगे। मस्तूरात में खवातीन की कुर्बानियां बहुत ज्यादा, हम मस्तूरात में सामान देंगे। मस्तूरात में सामान पूरा करके इंशाल्लाह फिर मर्द हजरात को पूरा कर देंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े शहर में बैठे हैं, वसाइल हैं, जराए हैं, चीजें कहां से ली हैं, कैसे करेंगे, आज हमने सारा उसका इंतजाम कर लिया है। आज ही हो जाना था, लेकिन आज छुट्टी है, मार्केटें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, हर चीज बंद है, तो कुर्बानी तो मर्दों ने देनी है। उन बेचारियों से क्या कुर्बानियां लें? उनका तो घर से निकलना ही खुद बड़ी कुर्बानी है। कुर्बानी तो आपने देनी है। बस मैं खवातीन से फिर कहूंगा, अगर कटोरे के लिए, नक्श के लिए है तो पाबंदियों के साथ बैठना है। अगर सिर्फ कटोरे और नक्श है वो हर खातून को मिलेगा। बैठना है तो पाबंदियों के साथ बैठना है। और खवातीन की एहराम की एक चादर होगी, वो जो ऊपर ओढ़ेंगी, मर्दों की 2 होंगी, क्योंकि असल तो खवातीन का एहराम खुद उनका लिबास होता है। क्या ख्याल है? हज उम्रे में यही होता है, नहीं होता? यही होता है। लेकिन खवातीन को एक चादर दी जाएगी जिस पे वो ऊपर ओढ़ लेंगे, ओढ़ के पढ़ेंगी। मर्दों के लिए 2 चादरें होंगी। गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई, चादर तू बांध कहते ले, नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। ऊपर नीचे ओढ़ ले, बांध ले। इसी लिबास के ऊपर दोनों तरह जो है ये चीज इंशाल्लाह आपके लिए होगी। और जिन खवातीन ने, मस्तूरात ने, जिन खवातीन ने पाबंदी के साथ हिजबुल बाहर का चिल्ला करना है, फिर अर्ज कर रहा हूं, सामान सिर्फ वही ले और ना ले खवातीन। और इंशाल्लाह जो मर्दों में कमी हजरात सामान की है वो आपकी कल पूरी कर दी जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कहें, वो कल सारी इंशाल्लाह आप पूरी कर दी जाएगी और आप हजरात को हर चीज आपको इंशाल्लाह पहुंचाई जाएगी। ठीक है ना? आप कोई इससे मन में सवाल है तो आप बोले, कोई सवाल आपके जहन में है तो आप बता दें। हाँ, कहते हैं मगरिब के बाद सूरत कुरैश का चिल्ला है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप मगरिब के बाद सूरत कुरैश, ताकि आपका सफर का सूरत कुरैश भी रहे और भी रहे, पढ़ सकते हैं जी। मस्तूरात का शादीशुदा होना शर्त नहीं है, पाबंदियों पे पूरा अमल करना शर्त है। आप कहते हैं ना कि हिजबुल बाहर के चिल्ले के लिए मस्तूरात का शादीशुदा होना शर्त नहीं, पाबंदियों पे तवज्जो करना शर्त है।
जो खवातीन मजबूरी की वजह से तस्बीह खाना नहीं आती, उनकी हिदायत हमने नेट पे डाल दी हैं क्या? सब डाल दी हैं, सारा कुछ डाल दिया। और मजीद उनकी हिदायत इस किताब में मौजूद है। वो पूरी दुनिया में अपने मकाम पे बैठे हुए, पूरी दुनिया में अपने मकाम पे बैठे हुए वो अमल कर लें, उनको पूरी हिदायत हैं। और जिन्होंने भी फॉर्म पुर किए हैं उनको ये चीज भिजवा दी है नेट के जरिए, पूरी किताब उनको भिजवा दी है जिन्होंने फॉर्म पुर किए हैं। पूरी की पूरी किताब हमारे जिम्मेदार हजरात देखें क्या सबको भिजवा दी है, कोई रह तो नहीं गया। ये बहुत जरूरी है, कहीं वो इंतजार न करता रहे। जिम्मेदार हजरात रात तक भी देखें, सुबह तक भी देखें। फिर अर्ज कर रहा हूं जिम्मेदारों को, रात भी पूरा दुनिया से लोग आएंगे, उनको भिजवाएं, सुबह फजर तक भिजवाएं। बस लाजिम जिम्मेदार हजरात, ये ना हो कि कोई लाहौरिया दिन के 2 बजे उठने वाला है, ऐसा ना हो, मेरी दरखास्त है जी। वजू बहुत शर्त है अल्लाह वाले, वजू शर्त है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर ये किताब हमें तकसीम कर दें तो हम रात को हिदायत जो है इनसे ले लेंगे। मैं जिम्मेदार हजरात से पूछता हूं कि अगर तकसीम कर दें तो अच्छी बात है, रात को मजमा हिदायत के। असल में किताब की तादाद भी तो नहीं है, हमने जितनी ज्यादा से ज्यादा की, अब ये ठाठे मारता हुआ मजमा हजारों का हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा। तो हमारे जिम्मेदार हजरात इसको देखें, अगर उन शापरों से निकाल के किताब सिर्फ दे दें, किताब मुझे अभी चिट भेजें, जिम्मेदार हजरात खिदमत वाले अगर उन शापरों से किताब निकाल के भेज दें, अपना सिर्फ मजमे को दे दें, तो ये हजरात उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि ये सुबह अगर किताब पढ़ते रहे तो इनका चिल्ले में खलल आएगा। ये मशवरा बहुत ठीक है, बहुत मुनासिब है। बल्कि मेरी दरख्वास्त यह है कि किताब अभी बांटें, तकसीम करें। अब किताब जितने लोगों को मिल जाए फिर वो एक दूसरे के साथ जरा रियायत भी कर लें जी। क्या कह रहे? मैं सुबह से अर्ज कर रहा हूं, जो हजरात आप पहले से कोई वजीफा कर रहे हैं, हिजबुल बहर के चिल्ले के दरमियान कोई वजीफा नहीं करेंगे। मगरिब के बाद आपके जो मामूलात हैं आप करें। अगर आपने हिजबुल बहर का चिल्ला पहले से मुकम्मल कर भी लिया तो फिर भी आप हिजबुल बहर मगरिब तक मुसलसल पढ़ते रहेंगे। मगरिब के बाद फिर आपके जो मामूलात, आपके जो वज़ाइफ हैं वो आप फिर पढ़ सकते हैं फजर तक जी। हाँ बिल्कुल, आप 2 चादरें लाएं एहराम की, अच्छी बात है, आप इस्तेमाल करें, बल्कि अच्छा किया। अब तो मुझे आपको देख के खुशी हो रही है, मेरे ऊपर जो बोझ है आप सोच नहीं सकते, आप जिम्मेदारियों का बोझ आप गुमान नहीं कर सकते जी। अगर कहते हैं अस्तंजा वजू के लिए जाना हो तो चादरें यहीं रख जाएं, आप साथ तो ना ले जाएं, कहीं नापाक ना हो जाए, वहां चादरों को संभालना। हाँ आपने अब हालत एहराम में हो, मेरी चादरें यहां रख जाएं। उन्हें कि जी हजरत ने फरमाया था चादरें यहां रख जाएं। मेरे पास मरीज आया, कोई घुटने का था, उसने कहा जी इसको चादर भूलने की भी तकलीफ है। वो क्या? कहने लगे गांव देहात में ना सिर्फ धोती पहनते हैं, जानवरों को नहर पे, नदी पे नहलाने ले गए जानवरों को। उसने कहा मैं भी नहा लूं, चादर बाहर रखी, नहाने चला गया, चादर वहीं भूला, वो चल पड़ा। ये सच्ची बात है।
اب لوگ دیکھیں ہنسے کوئی، وہ کہ کیا ہوا؟ جب گھر گیا تو گھر میں شور ہوا کہ اللہ والے یار تو بیچارہ برہنہ جسم ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اسے بعد میں احساس ہوا چادر وہیں رہ گئی، میں یہاں آ گیا۔